Yes, students. So actually today we will study about the two states, Ladakh and Kerala. Okay, Ladakh and Kerala. And in Ladakh, we studied about the Ladakh is the desert in the mountains in the eastern part of the Jammu and Kashmir. Okay, Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since this region doesn't receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. There are very few trees that can grow in the region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months, and people here keep sheep and goats. The goats in this region are Pashmina wool. This wool is prized, and Pashmina shawls cost a lot of money. So the people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. Pashmina shawls are cheaply woven in Kashmir, and the people eat meat and milk products like cheese and butter. And each family owns some goats, cows, and deserts, yani yak cows. Being a desert didn't mean that Ladakh didn't attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which carvers traveled to what is today called Tibet. These carvas carried textiles and spices, raw silk and carpets. So Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. Ladakh was a very rich oral tradition of the songs and poems. Local version of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslim and Buddhist. Yes, students, now the next is Kerala. Kerala is a state in the southwest corner of India. तो केरला आप ये यू कैन सी इन दिस मैप इंडिया मैप में आप देख रहे हैं कि दिस इज आर नॉर्थ साइड, दिस इज आर साउथ, ओके, वेस्ट एंड ईस्ट। ओके, सो केरला कहाँ पर लोकेटेड है आपका? केरला एक तो साउथ में और साउथ के अंदर वेस्ट साइड पर, वेस्ट कॉर्नर पर। ओके, सो केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। ये एक तरफ से आपके क्या है, हिल्स, सी से, समुद्र से गिरा हुआ है, और दूसरी साइड पर इसके क्या है, सभी हिल्स हैं। सो आर नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स एंड कैरमॉन्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। अब ये जो हिल्स हैं इनके ऊपर आपको कई तरह के जो स्पाइसेस है, मसाले हैं, नंबर ऑफ स्पाइसेस यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, जिसमें कि आपके पास पीपर, काली मिर्च, क्लोव्स यानी लौंग एंड कार्डमम्स का, आपके पास क्या हो गया यहाँ पर, इलायची। ठीक है, काली मिर्च, लौंग एंड इलायची आर ग्रोन ऑन द हिल्स, एंड इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। तो यहाँ पर क्योंकि इतने सारे जो स्पाइसेस जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्पाइसेस यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं इस रीजन में, इसीलिए ट्रेडर्स के लिए ये जो प्लेस है वो काफी अट्रैक्टिव है। ट्रेडर्स इसको अट्रैक्ट होते हैं इस रीजन पर। सो जूस एंड द अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। सबसे पहले यहाँ पर कौन आए थे? जो सबसे पहले जो ट्रेडर्स आए यहाँ पर, अरब ट्रेडर्स एंड जूस, यानी जो यहूदी होते हैं, जूस एंड अरबी ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पर केरला में आए। द option of Christ, Saint Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with the bringing Christianity to India. अब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो हमारे ईसा मसीह थे, जो हमारे क्राइस्ट थे, सो उनके अपोस्टल, यस, अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट मतलब कि जो ईसा मसीह के जो धर्म दूत थे, वो संत थॉम्स लगभग नियर अबाउट 2000 ईयर्स अगो यहाँ पर आए। ओके, एंड उन्होंने क्या किया, एंड ही
is credited with bringing Christianity to India. और यहाँ पर इंडिया में उन्होंने ईसाई धर्म का जो ईसाई धर्म जो यहाँ पाया जाता है वो उन्हीं की ही देन माना जाता है। ठीक है, जो इससे संत थॉमस जो हैं, जो ईसा मसीह के धर्म दूत थे, वो नियर अबाउट 2000 ईयर्स एगो यहाँ पर आए और इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी है उसको लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत सारे जो अरब ट्रेडर्स थे वो भी यहाँ पर आए एंड सेटल डाउन हियर, यहाँ पर वो सेटल हो गए। Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he described the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. तो अब यहाँ पर इनके बाद अब ये कहा जाता है कि जो अरब से कई सारे ट्रेडर्स यहाँ आकर बस गए। इबन बतूता ने जो नियर अबाउट 700 ईयर्स एगो यहाँ आया और अपनी जो ट्रैवलिंग थी, ठीक है, जो अपनी ट्रैवलिंग का पूरा जो इंसिडेंट था, सो यहाँ पर उसने क्या किया था, जो ट्रैवलिंग थी उसमें मुसलमानों के जो मुस्लिम लाइफ है उसको उसने उसका विवरण देते हुए ये लिखा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। उन्होंने अपनी जो ट्रैवलॉग था उस ट्रैवलॉग में इस चीज को डिस्क्राइब किया कि यहाँ पर जो मुस्लिम्स की जो लाइफ थी उनके बारे में कहा कि यहाँ पर मुस्लिम्स की काफी, उस कम्युनिटी की काफी रिस्पेक्ट होती थी। So the Portuguese discovered the seas route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. अब जो पोर्तुगीज थे, वास्को डी गामा जो है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वास्को डी गामा जो है वो जो शिप थी, पानी के जो जहाज थे, वो उसके जरिए यहाँ पर पहुंचे। तो जो पोर्तुगीज थे, जो पुर्तगाली थे, उन्होंने यूरोप से इंडिया तक का जो समुद्री रास्ता था वो जाना, इसकी वजह से वास्को डी गामा की वजह से। जब वास्को डी गामा यहाँ पर शिप के जरिए यहाँ पर पहुंचे तो उन्हीं के पीछे पीछे जो पोर्तुगीज थे उन्होंने भी यूरोप से इंडिया तक का जो सी रूट था उसका उन्होंने पता लगाया और वो उसे रूट को जान पाए। ओके, बिकॉज ऑफ ऑल these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. तो इन सभी हिस्टोरिकल जो इन्फ्लुएंसेस हैं इनके कारण केरल के जो लोग हैं वो कई सारे धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें एक तो हो गया जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। So the fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called चीनावाला। So यहाँ पर क्या था कि जो चीन के जो ट्रेडर्स थे वो भी केरला में आए और यहाँ पर वो फिश को पकड़ने के लिए जो नेट यूज किया जाता था, उन चाइनीज के द्वारा जो नेट यूज किया जाता था फिश को पकड़ने के लिए, उन चीनी नेट्स को वो चीनी नेट से हूबहू मिलते थे, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता था, चीनावाला। ओके, चीनावाला, दिस इज चीनावाला। एंड इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग, इवन के जो बर्तन, जो यूटेंसिल्स फ्राई करने के लिए यूज किए जाते थे, इज कॉल्ड द चीना चट्टी। उसको क्या बोला जाता था, उन यूटेंसिल्स को चीना चट्टी, जो फ्राई करने के लिए यूज किए जाते थे। एंड इज बिलीव दैट द वर्ड चीन would have come from China, क्योंकि देखो दोनों में क्या हो रहा है, एक में हम बोल रहे हैं चीना वाला, दूसरे यूटेंसिल्स को क्या कह रहे हैं, चीना चट्टी। तो ये जो चीन वर्ड दोनों में आ रहा है, इसी से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो वर्ड है चीना वाला एंड चीना चट्टी, ये किन से आया है, चाइना से। So the fertile land and climates are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. तो अब यहाँ पर केरल की जो फर्टाइल लैंड है और जो यहाँ का क्लाइमेट है
वो यहाँ पर किस चीज के लिए यहाँ पर जो है बस सुटेबल है। यहाँ पर किस चीज की क्रॉपिंग के लिए सुटेबल है? राइस की क्रॉपिंग के लिए ये बहुत ज्यादा सुटेबल है। और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं फिश, वेजिटेबल एंड राइस, ये सब चीजें वो खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so students, today we discuss all these terms. These are, yes students, so actually we discuss, so far we discussed the diversity. What is diversity? Okay. And after that we studied about the story of Samir 1 and Samir 2. Okay. After that we study the differences are there between the Samir 1 and Samir 2. And we discussed all these differences. Then after that we studied about the what does diversity add to our lives. Okay, then after that we studied about the diversity in India. And you know that India is a country of many diversity. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. Okay, then we studied about how do we explain diversity. After that we studied about the two states. Okay, two states, Ladakh and Kerala. Okay, the life of the people. We read here the life of the people in Ladakh and the Kerala. Okay, students. So in our next lecture, we will discuss about the unity in diversity. Okay, and this is this is the last topic of this chapter. So in our next lecture, we will discuss this unity in the diversity. Okay. So today, that's all for today. Have a good day.